Hello everyone, how are you all? I hope everyone is doing well. I am Dr. Dinraj Kulkarni. I am here to update you very important things on your final NEET examinations. I just wanted to brief you very important thing for your last 5 days of preparation. There are very important notifications also which has been mentioned on the NEET NEET councils. So I would like to highlight on those things at the same time how to go for your final 5 days of preparation, right? So let's start with this. So first and foremost, I would like to say that there are few major changes which you must have been noticed also, which was not there in the initially, that is 2024 and before. I came with a video last time which has mentioned that, and which the NEET Council has initially released. That is, they were having total 5 sections like part A to part E, right? बट देन जो एग्ज़ाम था आपका वो एग्ज़ाम डिले हो गया. दे हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस. इतने शॉर्ट नोटिस में 5 नए सेक्शंस नहीं दे सकते हैं. So they have came up with the same thing once again after delaying your examination. That is, they will be having only 2 sections, that is part A and part B, as it was there before. But there is little trick over here. Though there are 2 sections, part A and part B only, but this time this part A and part B are having something known as a time bound sections. Now what do you mean by time bound section? Let's have a discussion. So first and foremost, part A will be having 100 questions and part B will be having 140 questions. So you know that there is totally 240 questions having 960 marks. So initially it was like the part A, they had given the syllabus and that a lot of basic sciences questions are there, and the part B will be having your clinical sciences, right? But now this time it is not like that. They can mix and match. Does mean that अगर पार्ट ए में आपको सिर्फ क्लिनिकल साइंसेस के क्वेश्चंस नहीं रहने वाले, चांसेस ऑफ मिक्सिंग योर पार्ट बी क्वेश्चंस आल्सो इन योर पार्ट ए, एंड एट द सेम टाइम पार्ट बी में भी सिर्फ क्लिनिकल साइंसेस नहीं रहेंगे, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस. सेकंड इज, पहले टाइमिंग हमारा डिफरेंट था, राइट? अभी अपना टाइमिंग चेंज हो रहा है. सो दैट इज नाउ फॉर टू सॉल्व दीज 100 क्वेश्चंस ऑफ योर पार्ट ए, you will be having only 75 minutes, and to solve 140 questions you will be getting only 105 minutes. So part A में आपको 75 minutes मिल रहा है, part B में आपको 105 minutes मिल रहा है. So total together if you can see 105 plus 75 will be 180 minutes total. मतलब आपको 3 घंटे है, लेकिन 3 घंटे ऐसे डिवाइड करके दिया हुआ है. So does mean that 100 क्वेश्चंस मतलब 75 मिनट्स मिल रहा है. सो डज मीन दैट यू आर नॉट गेटिंग 1 minute फॉर 1 क्वेश्चन. इट इज लेस देन दैट. सो पॉइंट टू बी नोटेड. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इनिशियली आप पार्ट ए से पार्ट बी को स्विच कर सकते थे, पार्ट बी से पार्ट ए को स्विच कर सकते थे, एंड यू रिव्यू करके उसको बाद में रिपीट में आंसर दे सकते थे. बट इस टाइम ऐसे नहीं है. सो व्हेन यू आर देयर इन योर पार्ट ए, you will be answering only and only part A. There is no switch to your part B. So whatever questions you need to answer from the part A. Once a 75 minutes timing has been finished, so the part A automatically switch to part B, and now you are only answering part B. There is no revert back to part A. Very important point. So this is what I can say it as a time bound sections. तो आप लोगों को क्या करना है, आपके पास फर्स्ट सेक्शंस के लिए 75 मिनट्स है. 75 मिनट्स इन केस आपको लगता है कि 60 मिनट्स में आपने सॉल्व किया है और आपको कोई क्वेश्चंस रिव्यू करना है, तो बाकी आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स है, उसमें ही रिव्यू कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू कम बैक आफ्टर गोइंग टू योर पार्ट बी, इट इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इज़ अ टाइम बाउंड सेक्शंस, राइट? सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट अपडेट. You must be knowing this. And now how to prepare for these 5 days. So first I would like to tell you, अभी आपके दिमाग में 19 and more than 19 सब्जेक्ट्स है, राइट? अभी इनिशियली आप सिंगल सब्जेक्ट से पढ़ रहे थे, सो ईजी लग रहा था. अभी सब चीज़ जंबल होना शुरू करेगा. जंबल होगा तो ऑटोमेटिकली चांसेस है कि आप गलती करोगे या पैनिक स्टेट में आओगे, एंग्जाइटी सिचुएशन होगा, and your whole of the mind becomes blank. Please don't do that. Keep your mind very calm and composed. You need to think like these many days throughout I have studied. भाई 5 दिन में नया कुछ नहीं होने वाला है.
तो इतना दिमाग में रखो, सब कुछ इधर है. The brain is like your hard disk, it is having all the memories over here. It's just if you come in your anxiety situation, you will be losing everything. So first and foremost, calm and composed. The second very important thing is, now these 5 days you are not going to study any new things. Remember this. जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उतना ही आप लोगों को सॉल्व करना है, नया चीज़ को ही पकड़ना ही नहीं है, राइट? दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड, हाउ टू स्टडी नाउ. देखो, आप लैक्स टुगेदर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे ना, ऐसे नहीं होने वाला है कि वही क्वेश्चंस आएंगे, राइट? आपको आंसर अच्छा देना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू नीड टू हैव इज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सब्जेक्ट आपके दिमाग में रखना ज़रूरी है. द थेरोटिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ समवन इज टेकिंग वेरी गुड लेक्चर्स, प्लीज लिसन टू दोज वीडियोज फ्रिक्वेंटली, so that any tricky questions in your exams your mind will run, because you will be having everything in your mind. Theoretical idea रहेगा आपको, right? There are lot of image based questions, there will be lot of scenario based questions, chances of fill in the blanks रहेंगे, mix and match रहने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स रहने वाला है, ये सब रहेंगे आपके पास. तो आपको शांति से देखना है और शांति से आंसर देना है. अभी लास्ट इंपॉर्टेंट आई जस्ट वुड लाइक टू हाईलाइट इज, डू नॉट अटेम्प्ट 100 आउट ऑफ 100. लाइक 240 है तो 240 अटेम्प्ट करोगे, सोचोगे कि एक अगर क्वेश्चन करेक्ट आएगा तो 4 मार्क्स आएंगे, लेकिन ऐसे भी है कि अगर एक आंसर गलत होगा तो -1 मार्क्स भी है. याद रखिए इस चीज़ को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंसिडरेबली मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. ये इफ इन केस यू फॉर आंसरिंग 150, यू नो दैट दिस 150 आर वेरी वेरी करेक्ट. मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लिखूँ, मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता है, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करने जाऊँगा. सो दैट इज़ अ वाइज डिसीजन, बिकॉज 150 into 4 is 600, right? And trust me, 600 to 700 will be the highest rankers. जो ज़्यादा सोच नहीं चाहता है तो वो क्या करता है, 150 तो करेक्ट हो रहे हैं और 25-30 में ट्राई करूंगा, वो 25-30 में आपके 25-30 माइनस मार्क्स आ जाएंगे, तो जो आपका पोजीशन था वो लॉस होने के चांसेस बहुत रहने वाले हैं. सो डोंट डू दिस मिस्टेक, राइट? कीप योर माइंड कूल, गो टू द एग्जामिनेशन बिफोर टाइम, एंड लास्ट डे आप बिल्कुल भी बुक्स टच नहीं करोगे. जो दिमाग में है वो है, नया चीज़ टच करने के लिए जाओगे, जंबल होगा, टेंशन में आओगे, जितना सारा आपने पढ़ा हुआ रहेगा सब चीज़ लॉस हो जाएगा, right? So these are very important things. I would like to wish you all the best for your NEET PG examination. For in these 5 days, if you need any help from my side or from the Dr. Kulkarni's Dental Academy, you can feel free to contact me on my number 8308999113, or you can visit to my Dental Academy का जो ऐप है उसको विजिट करो, उसमें फ्री एग्जामिनेशंस चल रहे हैं आपके लिए. देन ऑलवेज गो एंड गिव द एग्जामिनेशन, मॉक एग्जामिनेशन लाइक योर फाइनल एग्जामिनेशंस, सो यू कैन गो देयर एंड अटेम्प्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट? सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. अच्छे से लिखो, स्ट्रेस फ्री लिखो, एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट एन एंड ऑफ योर लाइफ, right? It is just one examination. Okay, thank you, bye.